what is force already पढ़ा दिया था, right? Yes. But don't worry, I will again कर देता हूँ मैं, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे. So quickly हम एक small revision कर लेंगे. Okay, so give me a moment. Just a moment. Yes, yes. So what is force basically? What is force? Sir, force is a Yes. Force is a push or pull is known as force. force. I will just upload one image. So you can see here, a person is trying to push it. Person is trying to push it. And in another picture, you can see a person is trying to pull it, right? Correct? Yes, sir, yes. So this is basically what? This is the basically, you can say, force. So force, we can say a pull or push is called force, correct? Yes, sir. What are the other types of forces? We know that. Sir, push, pull, sir, then sir, elastic. Sorry. Yes, so forces used in everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, right? These are all what? These all are force. These all are Force. force, correct? Okay. So we can also say here, force is an external effort. Okay, I will just upload one image and I will let you know. Give me a moment. You can make a note of this. Yes, sir, I'm writing. Force is an external effort which may move a body, at rest, or stop a moving body, or change the speed of moving body, or change the direction of moving body, or change the shape of the body. Yes. Right? So please make a note. This is a big definition for it. Noted? Sir, just 1 second. Okay. Yes, sir. Okay. So just give me a moment. So here you have noted what is the force, right? Yes, sir. Next point is, what are the effects of forces? What are the Effective force. effect of forces? So I will just take a note of it and I will upload to you. So you can see I have taken the effect of forces. So the first effect you can see, when you will apply a force, the body moves at rest, right? Yes. मतलब रेस्ट से क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा, राइट? आप ये देखो एग्जांपल, गाड़ी रुकी हुई है ना, Yes, sir. अब गाड़ी के बाहर आदमी है तो गाड़ी तो कोई और चला रहा होगा या तो गाड़ी रुकी हुई होगी, यही दो पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो गाड़ी रुकी हुई है मींस गाड़ी, द कार इज इन द रेस्ट पोजीशन. नाउ व्हाट इज ही डूइंग? He is applying the force, and due to the force, what will happen? The car will move, right? अच्छा, इसने जो फोर्स लगाया हमें दिखा क्या कि इसने फोर्स लगाया है? No, sir. We only saw the effect. We only saw the effect.
एक लाइन इससे पहले लिख लो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से, वी कैन नॉट सी द फोर्स बाय आवर नेकेड आईज। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, वी कैन नॉट सी फोर्स बाय आवर नेकेड आईज। नेकेड आईज करने मतलब कि अपनी आईज, नॉर्मल आईज से, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि जी ठीक है आपने अपनी आईज से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप ये लगा के वो लगा के देखें, किसी से भी नहीं दिखना, ठीक है। Yes, sir. But we can see the effect of it. But we can see The effect of it. the effect of it. Clear? And the effects are simple. आप अगर एक प्रैक्टिकल करना ही है तो बुक है टेबल पे, Yes, sir. जरा सा पुश करके देखो, बुक मूव हो गया, राइट? सो बुक मूव हुआ, दैट मीन्स फ्रॉम द स्टॉप बॉडी, मतलब रुके हुए रेस्ट बॉडी से आपने मूवमेंट कराया, राइट? So basically what you have done, you have applied the force, right? Okay, fine. Second point क्या है इसमें, force can stop a moving body, force can Stop a moving body. तो सिंपल, ये देखो सेकंड एग्जांपल, फुटबॉल कोई दूसरे प्लेयर ने किक किया बहुत जोर से, राइट? Yes, sir. तो बॉल तो बहुत मोशन में होगा Yes, sir. और बहुत स्पीड से आएगा, राइट? Yes, sir. सो जब ये बहुत स्पीड से आएगा, और गोल, आपने फुटबॉल मैच देखा ना, गोलकीपर कैसे रोक लेता है बॉल को? Yes, sir. Yes, sir. सो मूविंग बॉडी को इससे क्या किया, गोलकीपर ने Stopped it. स्टॉप कर दिया, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग फोर्स। अच्छा, जो इसने अब फोर्स अप्लाई किया, सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी? Sir, opposite direction. Opposite direction of moving body, that is the reason it stopped, right? Okay, so नोट कर लीजिए दूसरा पॉइंट। So एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, write down, brief the effect of forces, okay? Yes. So you have to write down these few points, understand? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Noted? Yes, sir. Okay, fine. Next we have in this, change the speed of moving body. Change the speed of, सिंपल देख लो, साइकिल चलाते हो ना, एग्जाम्पल लो कि अभी स्लोली स्लोली चला रहे थे, आप साइकिल चलाए हो कि नहीं? हेलो, Hello? यस, आपने चलाया है साइकिल कभी? Yes, sir. आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। Hello? या नाउ इज इट क्लियर? हाँ, मैं ये पूछा, आपने चलाया है साइकिल कभी? Yes, sir. ओके, तो कभी स्लो चलाते हैं, कभी फास्ट चलाते हैं, ऐसे किया होगा, राइट? Yes, sir. तो फास्ट चलाने के लिए क्या किया होगा, पैडल जल्दी जल्दी मारा होगा, Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स यू हैव अप्लाइड द फोर्स बाय योर लेग्स, Yes, sir. so the speed will change. So the speed of moving body changes, that means you have applied the force, right? Yes, sir. Yes. So note down the third point. Noted? Yes, sir. I've written. Okay, next, change the direction of moving body. अब ये देखो, ये बैट्समैन है, क्या करेगा, बॉल बॉलर ने ऐसे डाला, ये बॉल गई, और बैट्समैन मारेगा तो बॉल इधर चली जाएगी, right? So Yes. basically what he is doing, he is Yes. changing the Changing the- direction, correct? Yes, sir. Make a note fast. Yes, sir. I wrote. Written? Okay. Next. In the next, you can see here, change the shape and size of body. मम्मी चपाती रोटी बनाती हैं, Yes, sir. so that's example. ये आपके पास बॉल है, Yes, sir. बलून, बलून को ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, shape and size will
Change. change. So make a note of it fast. Yes, sir, I wrote. Done? Okay. Now, the next part we have, just give me a second, I will let you know. We have balanced force and unbalanced force. What we have? Balanced and unbalanced force. Right. So hold a moment. मैं भी आपको बस ये बताने जाता हूँ. Okay. Loading. Okay, can you see this? Yes, sir, I can see. Okay. So this is what? This is balanced and unbalanced forces. Okay. Yes, sir. So आप एक काम करो, आप ये बैलेंस फोर्स का पहले नोट कर लो definition, Yes. and then I will give you some examples. Okay. Just 1 second, sir. Yes, sir. Okay. Now we will look into it. I'm taking one example. Okay. Can you see something on the board? Yes, sir. Okay. हम पहले ऊपर देखते हैं. ये देखो, इसको कहते हैं टग ऑफ वॉर्स, राइट? Yes. रस्सी वाला जो है रोप, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो. Yes, sir. इधर भी सेम प्लेयर्स, इधर भी सेम प्लेयर्स, राइट? ये स्कूल में बहुत टाइम आपने खेला भी होगा, करेक्ट? Yes, sir. अब देखो, तीनों ने मिलकर इधर फोर्स लगाया 300 न्यूटन, राइट? Yes, अच्छा, sir. आपको मैं पहले बता दूं, हम लोग मैथ्स में ऐसा करते थे, राइट हैंड साइड जो जाएगा उसको प्लस, लेफ्ट जो जाएगा उसके लिए नेगेटिव, राइट? Yes, sir. ऊपर जो जाता है प्लस और नीचे जो जाता है उसके लिए Minus. नेगेटिव लेते हैं. Yes, sir. Okay, so you can also see here we have applied a force in the left and we have applied a force in the right hand side. Can you see that? Yes, sir. So this side applied force is 300 Newton and this side is also 300 Newton. So you can see this is going to be how much? 0 Newton. How much? On, it's not on, it's 0 Newton. On Yes. mat padna.
Yes, sir. 0 Newton. It's 0 न्यूटन लिखा हुआ है, right? Yes, sir. So 0 न्यूटन means क्या हो गया? This black one is moving. Yes, sir. नहीं, ये कहीं मूव करेगा क्या ब्लैक वाला? ये जो पोर्शन मैंने बीच में बनाया था, Sir, it won't move, sir, because it's it just. would not move. It will be static in this case because it is balanced, right? Yes, sir. But what will happen here? सेम चीज मैं यहाँ बना देता हूँ, राइट? कोई Yes. एक इंडिकेटर या कुछ ऐसा हम कर लेते हैं, and you can see in the left hand side they are applying how much? 400, and the right side 300, correct? So you can see after doing calculation 100 Newton is coming, and which direction 100 Newton? Towards the left. So this black color will go in which direction? It will go in the left hand side, Yes, sir. correct? Any problem? No, sir. Huh? No, sir. No, sir. Okay, I will take one more example. You can just see here, uploading. Uploading here. You can see in this, एक dog है, right? और ये girl है. कभी कभी dog करते हैं ना भागने की कोशिश. Yes, sir. So अब आप क्या करोगे? मान लो एग्जाम्पल लो, डॉग ने इधर 100 न्यूटन लगाया फोर्स, तो गर्ल को भी इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा? Sir, 100 Newton. That's why at this point we can say no movement, and ये बैलेंस्ड हो जाएगा, करेक्ट? Yes. लेकिन एग्जाम्पल लो कि डॉग ने 200 न्यूटन लगा दिया और गर्ल सिर्फ 100 न्यूटन लगा पाई, तो क्या होगा उस केस में? डॉग भाग जाएगा. Yes, sir. डॉग क्या करेगा? डॉग भाग जाएगा आसानी से. Yes, sir. Yes, sir. और आपने देखा ही है, ऐसा कई बार होता है हमारे डेली लाइफ में, Yes. राइट? So these things happens in our daily life. That is the reason we can see balanced and unbalanced forces. Do you understand about it? Yes, sir. I understand. कोई डाउट है बैलेंस अनबैलेंस में? No, sir. बैलेंस्ड होगा so movement कुछ नहीं होगा, there is no movement, right? No. And unbalanced हुआ तो उसमें movement आ जाएगी, correct? Yes, sir. So you can see here they are also stating balanced forces cannot change the state of rest or motion. जिस position में उसी में रहेगा, मतलब no motion, right? Yes, sir. But unbalanced force change the state of rest or the motion of the body. मतलब कि अगर ये motion में है, मतलब रुका हुआ है तो motion में भी आ सकता है, right? Yes, sir. Welcome. तो आप unbalanced को भी समझ गए हो, right? Yes, sir. तो उसको भी लिख लो साथ साथ. जल्दी से लिख लो. I will be back in a minute, okay? Yes, sir. Yeah. Yes, can you hear me? Yes, sir. I can. चलो ये हो गया. Sir, just 1 second. Okay.
Yes, sir. Okay, fine. Give me a moment. Yes. Now we are going to learn about Newton's laws of motion. Okay, Okay, sir. so total we have 3 laws. I will just write down here. अभी बहुत कुछ लिखना आप. Newton's laws of motion. Yes. First law. अभी नोट मत करना, मैं बोलूंगा नोट करने के लिए, ठीक है? Yes, sir. Newton's second law and Newton's third law. Total कितने laws हैं? 3 laws. Sir. What are they? First, second, third. Yes, sir. मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप न्यूटन्स लॉज याद रख सकेंगे, ठीक है? क्योंकि Yes. बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि फर्स्ट लॉ किस बारे में था, सेकेंड लॉ में क्या बोला, थर्ड लॉ में क्या बोला. सो आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट. एक्सप्लेन मैं अभी इसके बाद करूंगा, ठीक है? Yes, sir. So Newton first law talks about inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है? Inertia. इनर्शिया के बारे में. न्यूटन सेकंड लॉ बात करता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, Yes, sir. और आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है. चेंज ऑन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. और थर्ड लॉ बात करता है एक्शन रिएक्शन के बारे में. एक्शन रिएक्शन. अभी हम वन बाय वन सारे लॉज को एक्सप्लेन में देखेंगे. तो ये मैंने इसलिए लिख कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि फर्स्ट लॉ किस बारे में है, सेकंड लॉ किस बारे में है, थर्ड लॉ किस बारे में, राइट? सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. कैन यू हियर मी? Yes, sir. I can. या प्लीज मेक अ नोट फास्ट. Yes, sir. I wrote. Fine. Moving. Yes. Can you read the first law? Yes, sir. Please go ahead. Newton's first law of motion states that an object remains in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. Okay. Wait. What is the first law says? First law says that an object remains in rest or in uniform motion unless or until any external force is applied. कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल लीजिए, एक काम करो. Yes, sir. क्या है टेबल पे? कुछ रखा हुआ है टेबल पे? Sir. क्या है? हाँ, बुक. Sir, I have notebook. हाँ, Notebook. चलो नोटबुक को रख दो टेबल पे ऊपर. रख दिया? Yes, sir. ओके, उसको देखो जरा. टच मत करना, टच मत करना, ठीक है? जरा उसको देखो नोटबुक को. Yes, sir. ओके, वहीं पे है या कहीं चला गया? No, sir. Still here. स्टिल हियर. अच्छा ठीक है, कुछ देर और देखो. Sir, still here. Let me count 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
नोटबुक वहीं पे है, कहीं चला गया? It's still there. Still there. So what does it mean? न्यूटन्स लॉ कहता है कि जो जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा। Yes, तो sir. जहां पे है वहीं रुका पे रुका रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, राइट? अब एक Yes, काम करो, आप थोड़ा सा पुल करो या पुश करो नोटबुक को। क्या हुआ पुल पुश करने से? move. इट मूव्ड। तो रेस्ट से मोशन में आया, रेस्ट से मोशन में आ गया था ना अभी। Yes, क्यों आया था? from rest to motion. Because you have applied Sir, force. You have applied what? You have applied force. External force you have applied. That's why the body came in motion. So Newton law, first law simply कहता है कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। In English we can say that if a body is in rest, it will remain in the rest. If a body is in motion, it will remain in the motion until or unless any external force is applied on it. Is that clear? Yes, sir. So मैं एक definition हो सकता है ये language clear ना हो, तो मैं एक language भी आपको बता देता हूँ. You can make that language. This language is also, can you see that? Yes, sir. इसमें simple language में बोला है, a body at rest will remain at rest, body in motion will continue in motion, right? Yes, sir. Unless it is compelled by external force to Okay. change its state of rest or motion. This is the Newton's first law. आप ये note down कीजिए. Yes. Noted? Sir, 1 second. Done? Yes, sir. Okay. बहुत सही. Give me a second. Yes. Sir, if in the exam they say explain the first law of motion, so should we read the exact words written in our Yes. textbook, or can we just write it in our own words? No, you can write in your own words. No problem. Okay? Yes. Yes. Give me a second. Yes, sir. I just want to show you something here. Can I see something? Yes, sir. Okay. What you can see right now? The Newton's first law of motion. Okay. इसमें देखिए क्या होता है. You can see
Yes, sir. बॉय जैसे ही यहाँ देखो बॉय धक्का दिया तो स्टार्ट हुआ, राइट? Yes, sir. सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे देखो क्या होगा, राइट नाउ द बॉल, ओके ये यहाँ लिखा हुआ है, राइट नाउ यू कैन सी द बॉल इज देयर, राइट? Yes, sir. सो बॉल इज देयर, बॉल इज मूविंग क्या? No, sir. Ball is not moving. Now look here, what will happen? He kicked. So he kicked means he applied the force, right? Yes, So sir. when he applied the force, so you can see the ball is moving. Can you see that? Yes, sir. अभी देखो ये मोशन में है, रुक ही नहीं रहा, राइट? Yes, sir. सो कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, बॉल नहीं रुकेगा, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जो भी है these they have thought it there. Okay, now we have to look for inertia. Okay, so Yes, just sir. give me a second, I will just let you know. पहले मैं inertia सब बता दूं फिर सब आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट लॉ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। लिखना क्या यहाँ पे है, इनर्शिया। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। You just note down, I will explain. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now inertia says that it's a natural tendency of an object to remain at rest Yes, sir. or in uniform motion. सिंपल सी बात ये है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। Yes, sir. दैट इज जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता, राइट? Yes, sir. एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सी बात है। छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं, Yes, राइट? sir. Yes, sir. जिद्दी होना क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चाइल्ड, करेक्ट? Yes, sir. कि वो जिद्दी, ऑब्वियसली वो जिद्दी होगा। बड़े बच्चे को आप समझाओगे तो वो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है पापा समझा रहे हैं, मान जाते हैं। छोटा Yes, sir. बच्चा क्या करता है, नहीं चाहिए तो चाहिए, चॉकलेट चाहिए तो हम खाएंगे फिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना? Yes, sir. करता है ना वो? Yes, sir. नहीं नहीं मिला तो फिर लोट पोट शुरू हो जाती है, Yes, sir. राइट? अब Yes. जब लोट पोट शुरू हो गई तो पापा मम्मी क्या करते हैं, गुस्से वाले हुए तो एक झापड़ दे दिए, Yes, sir. तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। Yes, sir. जब एक्सटर्नल फोर्स मिला तो टेंडेंसी बदल गई, Yes, sir. घर चुपचाप घर में चले जाएंगे। Yes, sir. तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ भी मैं इनर्शिया वही दिखाता हूँ कि पहले वो क्या थे, चाहिए, दैट मीन्स दे आर इन रेस्ट, करेक्ट? Yes, sir. कोई मूवमेंट नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। बच्चा बैठ गया, चेयर पे बैठ गया, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, राइट? Yes, sir. सो दिस इज द इनर्शिया। ये जिद कर दिया इसने, राइट? Yes, sir. जिद किया तो एक पंच, पंच मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। Yes, sir. जैसे ही पड़ा एक झापड़ तो बोला चलो ठीक है पापा घर चलते हैं, राइट? सो घर के लिए मतलब होम के लिए निकल गए। सो दैट मीन्स बॉडी केम इन मोशन। क्लियर है? सो दैट इज जो इनके पास जो ये जिद है, जो टेंडेंसी होती है बच्चों की, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया इन आवर लैंग्वेज।
अब देखो सिंपल सी बात, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, सॉरी, ये देखो ग्लास है, राइट? Yes. ग्लास के ऊपर इन्होंने एक पेपर रखा है, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. कॉइन कहता है जी कि हम पर फोर्स लगाओगे तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे, राइट? इन्होंने क्या किया, जल्दी से पेपर को खींचा, इस पर फोर्स नहीं लगा, तो क्या बोलेगा जी, हम वहीं रहेंगे। सो उसी Yes, sir. पोजीशन पर रहने के कारण ये क्या हो गया, कॉइन नीचे गिर गया, राइट? Yes. इज इट क्लियर? I will show you something more in this. Give me a second. Yes. Can you see this? Can you see this? Yes, sir. अब देखो, ये बॉल की पोजीशन देखना, ball is remain here if this portions will move, right? Yes, sir. So you can see ये हटा, बॉल वही है, बॉल की पोजीशन नहीं हटी। कैन यू सी दैट? Yes, sir. और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तभी बॉल हमारा मूव किया, राइट? Yes, sir. So that is called the inertia. That is called what? Inertia. Inertia has three types: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. I will come to one by one. Okay. So Yes. पहली चीज, यहां तक inertia समझ में आया आपको? What is inertia? Yes, sir. अच्छा, अब हम चलते हैं inertia of rest के कंडीशन में। ओके, तो आप अपने सॉरी उस पे लिख लो, inertia of rest में आप लिखो अपने नोटबुक पे, because I will not move there. Yes, sir. अच्छा, अभी जरा ये सोचो, ये देखो यहाँ पे, ये क्या था? बस। Yes, sir. बस, बस के अंदर ये क्या है बताओ? Passengers. पैसेंजर, एक लेडी पैसेंजर बैठी हुई है Yes, sir. और ये जेंट्स पैसेंजर खड़ा है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल, मैं बस पैसेंजर की बात कर रहा हूँ। एक पैसेंजर बैठा है, एक पैसेंजर खड़ा है, राइट? Yes, sir. ओके, आई विल प्ले एंड आई विल शो यू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir. ध्यान से देखना, Yes, sir. Yes. मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखना क्या होता है। Yes, sir. Yes. कुछ दिखा यहाँ पे? Yes, sir. I can see. क्या हुआ? No, sir. It's still moving, sir. हाँ, So the bus is moving. बस जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? ध्यान नहीं दिया आपने, देखना पड़ेगा वापस से। Yes, sir. Bus is not moving right now. Bus is in the rest. Yes, sir. It's in rest. अभी भी बस रेस्ट में है, ओके? अभी भी बस रेस्ट में है, Yes, sir. लेकिन yeah. बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसकी बॉडी में कुछ हुआ था? Yes, sir. He moved back. He moved back. So inertia of rest क्या कहता है? Inertia of rest says that the body will not move. Body will Not move. not move. मतलब पहले गाड़ी रुकी हुई थी तो ये बॉडी भी स्टैटिक खड़ा था। यू कैन सी हियर, ओ सॉरी, गाड़ी अभी रुकी हुई है ना? Yes, sir. ये पैसेंजर आराम से खड़ा है, कोई मोशन है क्या पैसेंजर में? No, sir. पैसेंजर बोलता है जी कि हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे, देयर इज नो मोशन इन मी, राइट? Yes, sir. अब देखो, जब बस चलेगी, राइट, तो बस चलेगी तो इसकी जो बॉडी है, इसका फीट क्या बोलेगा? तुम भी चलो, राइट? Yes, sir. तो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो रेस्ट में रहूंगा, राइट? Yes, sir. तो अब ये पूरी बस आगे की तरफ, मतलब हमारे पिक्चर में लेफ्ट मूव करेगी तो इसका हेड किधर मूव करेगा? बैक जाएगा। Yes, sir. So that same thing happens when bus started. You can see. Understood? Yes, sir. I understood. Passenger backward. This is happening because of inertia of rest. Initially, body was in rest condition, Yes, sir. and suddenly the car or bus started. So force applied. So he felt back. Yeah. Understand? Yes, sir. So this is the condition of
rest. You can see here they are going to explain. Body is in rest condition right now. Bus is also in the rest. Yes, Correct? sir. Now bus started, so feet देखो 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 कैसे बस बोला कि इसके पैर को खींचो, बॉडी Yes. बोलता है नहीं जी नहीं खींचो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैर आगे की तरह, सॉरी गिव मी अ सेकंड, Yes, sir. Yes. उस कंडीशन में ओहो देखना यहाँ क्या होता है, देखो पैर आगे बढ़ रहा है, Yes, sir. बॉडी बोलता है नहीं नहीं वहीं रुको, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैर तो आगे बढ़ जाएंगे, तो ये जो बॉडी का हेड है वो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और ये आपके साथ कई बार हुआ होगा स्कूल बस में, Yes, sir. होता है ना? Yes, sir. ओके, so this is the case of inertia of rest. Give me a moment. Yes. यहां भी देखना सेम चीज, क्या हुआ यहाँ पे, बोर्ड हटा, Yes, sir. बॉल सीधे नीचे गिर गया, क्यों? बिकॉज बॉल डजंट वांट टू मूव. यहां देखो सेम, ये देखो ये कैसे राइट लेफ्ट हो रहा है, बिकॉज बॉडी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाह रही थी, राइट? Yes, sir. लेकिन उस पर फोर्स लगने का कारण उसने मूव कर, देखो अभी क्या हुआ, ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, द बॉडी वांट्स टू मूव Back. फॉरवर्ड, Sorry. Yes, sir. Forward. राइट? तो Yes. अभी क्या था, अभी बॉडी हमारा मोशन में था, मोशन से सडनली क्या हुआ, देखो बस इज इन मोशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मोशन में था, अचानक ब्रेक लगाया तो रेस्ट हुआ, तो बॉडी कहता है नहीं जी हम तो मोशन में रहेंगे, हम तो मोशन में रहेंगे, रेस्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही रेस्ट दबाया तो लेग्स वांट टू रेस्ट बट द बॉडी वांट्स इन मोशन, दैट्स व्हाई द हेड इज गोइंग फॉरवर्ड, राइट? Yes, sir. तो हमें एक चीज यहां समझ आई, आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग नाउ मोर, गिव मी अ मोमेंट, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओके, सो यहां से हमें समझ में आया कि इफ याद रखेंगे हम, if bus is in motion, if bus is in motion, we fall forward, हम आगे की तरफ गिर जाएंगे, राइट? Yes, sir. बस इज इन रेस्ट, रेस्ट से क्या होगा, स्टार्ट होगा, राइट? Yes, sir. तो हम किधर गिरेंगे, हम Backward. बैकवर्ड, यहां से मोशन से रेस्ट में, तो देखो चेंज होने पे कैसे ये आगे पीछे गिर रहा है, और ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है, आप स्कूल बस में जाते हो, जैसे अभी स्कूल जाते थे पहले, या कार में कहीं घूमने जाते हो, कार पहले क्या होता है, बंद रहता है आपका, Yes, sir. कार में आप बैठ गए, जैसे ही कार चलती है तो आपका हेड पीछे सीट से टकराता है, Yes, sir. होता है ऐसा, राइट? Yes, sir. अच्छा, Yes. दूसरी चीज, अगर आपके पापा कार चला रहे होते हैं और उन्होंने ब्रेक लगाई अचानक से, तो आप सीट की तरफ नहीं आगे की तरफ झुक जाते हो Yes, sir. जब ब्रेक लगता है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. It's happening. इट्स ड्यू टू द इनर्शिया. व्हाट आर द रीजन? Inertia. इनर्शिया. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से, जब आपकी गाड़ी कार रुकी हुई थी, राइट, Yes, sir. आप कार में बैठ गए और अचानक से स्टार्ट हुआ, तो बॉडी कहता है जी रेस्ट में रहो, नहीं मूव करना, राइट? Yes, sir. बट आपके लेग्स क्या बोलते हैं, मूव करो, दैट्स व्हाई योर अपर पार्ट वांट्स टू बैक, राइट? Yes, sir. जब आपका बॉडी मोशन में रहता है तो बॉडी कहता है जी मोशन में रहेंगे, मोशन में रहेंगे, राइट? Yes, sir. और सडनली ब्रेक लगाया तो ये रुकना चाहेगा, ये रुकना नहीं चाहेगा, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू फॉल फॉरवर्ड. क्लियर है? Yes, sir. और मैंने वो इमेज भी दिखा के आपको क्लियर कर दिया कैसे वो होता है, राइट? Yes, sir. सो एनी डाउट, एनीथिंग? No, sir. No, sir. So no doubt in inertia, right? No, sir. And we have seen examples also, correct? Yes, sir. Okay, fine. So ये चीज आप नोट कर लो जो मैंने अभी लिखा है.
Yes, sir. I wrote. Done. Okay. Give me a moment. इसके बाद एक टॉपिक है इसी में, ये लिख लिया आपने? Yes, sir. I've written. Okay. Now we are going to see which inertia is bigger. Okay. Yes, sir. So आप नोट करो. अच्छा, इनर्शिया की डेफिनेशन तो नोट कर लिया ना आपने? Yes, sir. क्या नोट किया है? Sir, the natural tendency of an object to remain in state of rest or in uniform motion is called inertia. ओके फाइन. उसके नीचे लिखो, ये भी पॉइंट नोट लिख लिया आपने, राइट? Yes, sir. इसके नीचे लिखना जो मैं बताऊंगा अभी. Yes, sir. आप लिखो इसके नीचे पॉइंट. ओके. मास इज अ मेजर ऑफ मास. Yes, sir. ओके, आई विल अपलोड, ज्यादा बेटर होगा. आई एम अपलोडिंग. मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. आप लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई. Yes, sir. ओके. Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय इट? इनर्शिया हम कैसे मेजर करेंगे? So we use mass to measure inertia. राइट. जैसे कि एग्जांपल लो, मेरा मास 100 kg एग्जांपल लो. Yes. आपका जस्ट 40. कौन भारी हुआ? Sir, I'm 50 right. kg. 100 kg will be the heavier, right? Yes, sir. So the heavier body, so mass is a measurement of inertia. मतलब मास से हम inertia मेजर कर सकते हैं. Yes. दूसरा पॉइंट क्या है कि if a body has more mass, it has more inertia. Note down. पहला पॉइंट क्या है कि कैसे मेजर करेंगे, तो मास से. दूसरा, if a body has more mass, then it has more inertia. तो यहां से हमें समझ में आया कि heavier object, what we have understood, heavier object have more inertia. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Heavier object have more inertia than lighter object. कोई डाउट? No, sir. लिख लो जल्दी से. Yes, sir. अब ये देखो, हमारे पास बॉक्स ए है एंड द बॉक्स बी है. दिखने से ही लग रहा है कौन बड़ा है, राइट? Yes, sir. तो हेवियर कौन होगा इसमें से? बी. सो विच हैज द मोर इनर्शिया? B. बी हैज द मोर इनर्शिया. अब समझने की बात, क्यों इनर्शिया ज्यादा क्यों है? हम क्यों बोल रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा? क्यों ऐसा कह रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब एक बात बताओ, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जिद्दीपन है. हम नहीं हिलेंगे, नहीं हिला सकते आप हमको, राइट? Yes, sir. इनर्शिया क्या कहता है? हम नहीं हिलेंगे, आप चाहे जो कर लो, मैं नहीं हिलूंगा यहां से. Yes, sir. इनर्शिया इसी बात को कहता है, राइट? Yes, sir. छोटा बक्सा थोड़ा सा फोर्स लगाया, हिल जाएगा, राइट? Yes, sir. इसको हिलाने के लिए क्या लगता है? आप हिला पाओगे इतने बड़े बॉक्स को? No, sir. तो क्या ये ज्यादा जिद्दी हुआ? Yes, sir. ज्यादा जिद्दी हुआ तो ज्यादा हेवी हुआ. Yes, sir. ज्यादा हेवी हुआ तो ज्यादा इनर्शिया हुआ. Yes, sir. ज्यादा इनर्शिया तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. Yes, sir. सो जिसको मोर इनर्शिया है, वी नीड मोर फोर्स. वी नीड More force. टू मूव इट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. इस केस में क्या चाहिए? लेस फोर्स टू मूव इट, राइट? मैं Yes. बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जस्ट गिव मी
एक काम करो, आप लिखो more inertia need more force, more inertia need More force. more force, and less inertia need Less force. less force. Yes, sir. Okay, Yes, sir. just give me a second. एक second. Hold a moment. Yes. चलो, मेरे पास ये दो कैरेक्टर हैं. अपलोडिंग. मेरे पास ये दो कैरेक्टर हैं. कैन यू सी दैट? Yes, sir. दोनों ही जिद्दी बच्चे हैं. ठीक है. Yes, sir. दोनों ने आइसक्रीम मांगा, नहीं दिया. अब एक बात बताओ, दोनों को घर ले जाने के लिए किसको ज्यादा फोर्स लगेगा? ताकत किसमें लगानी पड़ेगी ज्यादा? Sir, Tom. क्यों? Sir, because he's heavier. ही इज हेवियर, फैटी बॉय, राइट? Yes, sir. फैटी बॉय है, बैठ गया तो हिलाना मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. ये छोटा सा है, थिन, उठाया गोद में लेके भाग जाएंगे. राइट? Yes, sir. इसका क्या है, कुछ नहीं कर सकते, ट्रक बुलवाना पड़ेगा. ओके, सो नहीं, ट्रक नहीं, आराम से भी जा सकता है. बट ही इज फैटी. फैटी है, ज्यादा वेट है, ज्यादा है, तो इसके लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. राइट? Yes, sir. More force. So ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी means for him more inertia. Correct? Yes, sir. So is this clear about the inertias? Yes, sir. Yes. Okay, चलो फिर हम नहीं, अब आगे नहीं बढ़ेंगे. So till here you have learnt about inertia and all, right? Yes, sir. हम next class में थोड़ा सा inertia से मुझे आप बताना. I will topic name momentum. Note down कर लो. Yes, sir. I have to tell you about momentum. तो आज क्या सीखा? न्यूटन फर्स्ट लॉ सीखा, इनर्शिया सीखा, राइट? Yes, sir. एंड फोर्स सीखा हमने. इनर्शिया में ये Balance सीखा force. कि Balance force. यस यस, इनर्शिया में ये सीखा कि जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा हमको. राइट? Yes, sir. ओके, फाइन, ठीक है. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास and we will see further about these things. Okay? Okay, fine. Thank you. Okay, bye, take care.